Good morning, students. Today is our module 10 of the same chapter, electricity. And today we will discuss some NCERT in-text question as well as some NCERT exercise questions. So, as far as in-text question is concerned, the questions given on page number 200, page number 202 and page number 209. These questions I have already given you in the previous modules. So answers I have provided here. This is for page number 200. Questions given on page number 200 and questions given on page number 202 and questions given on page number 209. These are the answers. So you can cross check your answers which you have already done in your CWHW copy and check your answers, and if there is any correction needed you can correct it. Or what you can do, you can take the printout of these questions which is given on page number 200 to 209 and 200, and you can paste this in your copy. Now let us start with the page number 230. See, the question number 1, draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery, 3 cells of 2 volt each, and 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor, and a plug key that are connected in series. So we have to draw a circuit diagram in which these 3 resistances, 5 ohm, 8 ohm, 12 ohm. So we can give them a name as a R1, R2 and R3. They are connected in series and along with the battery consisting of 3 cells. See, there are 3 cells, 1, 2, 3, and the voltage of each cell is 2 volt. So 2 plus 2 plus 2 is equal to 6 volt. So I have drawn here the 3 cells and I have written the total voltage as 6 volt. And this is a plug key. This is a plug key. And one thing more you can draw, because it is a closed key, so you have to show the direction of current also. It is like this, and this current, circuit current is I. So you have to label it like this. Now next question, redraw the circuit of question 1. जो अभी हमने ड्रॉ किया उसको रीड्रॉ करना है, पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर. हमें अब उसी सर्किट डायग्राम में एक एमीटर लगाना है और एक वोल्ट मीटर लगाना है, जो कि पोटेंशियल वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर. तो हमें एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर लगाना है. अब बेटा इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि एमीटर कैसे कनेक्ट होता है. यस, इट इज़ इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज़ इन पैरेलल. तो अब हम देखिए, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. दीज वर द R1, R2 एंड R3. दिस इज द एमीटर. देखिए एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से करंट की डायरेक्शन आ गई है. की को लेबल करेंगे एंड 12 ओम के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर भी लगा दिया है. वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में, ऐसे ही सिमिलरली फॉर एमीटर. सो अब ये कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ऑल 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, R1, R सीरीज क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3. ये फॉर्मूला भी आपको लिखना है. टोटल रेजिस्टेंस विल कम आउट टू बी 25 ओम. नाउ यूजिंग द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR. तो I की वैल्यू निकालेंगे, V बाई R दैट इज 6/25 इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर. अब हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है. तो इन सीरीज द करंट इन ईच कंपोनेंट विल रिमेन सेम. तीनों कंपोनेंट में करंट सेम जाएगा. सो हैज़ द 12 ओम के अक्रॉस भी, 12 ओम के थ्रू भी 0.24 एम्पियर ही करंट जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR लगा के हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे. I is 0.24 and resistance is 12 ohm.
तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 2.88 वोल्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 216। अब इसमें वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन the following are connected in parallel 1 ohm and 10 raised to the power 6 ohm। it is 10 raised to the power 6 ohm। देख रहे हैं 1 ohm के पैरेलल में 10 की पावर 6 यानी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस की वैल्यू लगी है, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में हमेशा जो रेजिस्टेंस का आंसर आएगा दैट इज़ लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस और ऑलमोस्ट इक्वल टू द लीस्ट रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन शो नहीं करी है, आप सीधा लिखेंगे सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट गिवन रेजिस्टेंस, हेंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm and 10 raised to power 6 ohm will be less than 1 ohm but we may take it approximately equal to 1 ohm। ठीक है, तो हम ऐसे ही आंसर लिखेंगे, ऐसे कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है। एंड बी पार्ट में 1 ohm 10 raised to power 3 ohm एंड 10 raised to power 6 ohm। अब ये पैरेलल में लगे हैं, यहाँ पे भी वही एक एक्सप्लेनेशन है कि पैरेलल में लेस देन द लीस्ट गिवन रेजिस्टेंस आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो ड्यू टू द सेम रीज़न एज अबव द इक्विवेलेंट resistance of 1 ohm 10 raised to power 3 ohm and 10 raised to power 6 ohm in parallel combination will be less than, but we may take it approximately equal to the 1 ohm। So in this way we can do this। Now question number 2, an electric lamp of 100 ohm and a toaster of 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel। ठीक है, 220 वोल्ट सोर्स लाइन, यानी कि हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंसेस के तरह कंसीडर होगा। दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3। ये पैरेलल में लगे हैं और 220 वोल्ट सोर्स यानी कि AC सोर्स है हमारे पास। जब भी सोर्स कहें लाइन कहें तो इसका मतलब AC सोर्स की बात वो कर रहा है। नाउ व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम source takes as much as current as all 3 appliances and what is the current through it। अब बेटा इन तीनों को रिप्लेस करके हमें एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है लगानी होगी जो कि सेम करंट ड्रॉ कर रही है जो ये तीनों मिलके ड्रॉ कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, जैसे कनेक्शन ऑफ यू शो द कनेक्शन ऑफ ऑल द 3 appliances, यू हैव टू शो द कनेक्शन। अब कनेक्शन के लिए सर्किट डायग्राम आपको बनाना होगा। अब जैसे ये एक लैंप बनाया, लैंप के आगे आप यहाँ वाटर फिल्टर लगा देंगे, उसको लिख देंगे वाटर फिल्टर और यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस लिख देंगे। उसके बाद टोस्टर लगा देंगे, टोस्टर की भी रेजिस्टेंस यहाँ लिख देंगे R1 इज़ इक्वल टू 100 ohm, R2 वाटर फिल्टर कितनी है 500 ohm। ये आप इसको रिप्लेस भी इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि सेकंड नंबर पे ये दिया है। तो मैं ये सर्किट डायग्राम दोबारा बना देती हूँ। R1 हमारा लैंप है, देखिए दिस इज़ R1 इज इक्वल टू 100 ohm। सेकंड है हमारा टोस्टर, टोस्टर के लिए आप एक ब्लॉक बना देंगे, यहाँ लिख देंगे टोस्टर और यहाँ लिख देंगे R2 इज इक्वल टू 50 ohm। ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हुए। देन हम एक वाटर फिल्टर बना देंगे, वाटर फिल्टर, और इसकी भी रेजिस्टेंस लिख देंगे R3 इज इक्वल टू 500 ohm। ये आपको फेयरली बनाना है। इन तीनों को कनेक्ट करके और यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लगा देंगे AC सोर्स जो कि कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, एंड अगर आपको इसके अंदर एमीटर लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं तो ऑप्शनल यहाँ पे I शो कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नाउ द 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा के इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। दैट कम्स आउट टू बी RP इज इक्वल टू 500/16 125/4 ohm। नाउ करंट के लिए V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, I हो जाएगी V/RP, तो 7.04 ohm। तो ये टोटल सर्किट करंट है। ठीक है, अब देखिए डायग्राम भी बनाया है यहाँ पे, देखिए R1 हमने 100 ले लिया, टोस्टर को हमने एक रजिस्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है और फिल्टर को भी रजिस्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका इक्विवेलेंट ये सर्किट बना है जिसमें इलेक्ट्रिक आयरन लगी है और उसकी रेजिस्टेंस क्या है R, और जो ये R है दैट इज़ इक्वल टू RP।
और सर्किट में करंट जा रहा है 7.04 एम्पियर। यहाँ पे बैटरी से डिनोट किया है, बैटरी से कर दीजिए, नहीं तो AC सोर्स लगाएंगे तो वो भी सही है। नाउ करंट क्योंकि सेम है, now since the current in the electric iron is 7.04 ampere and is connected to the same source 220 volt, hence the resistance would be V by I, resistance of electric iron V by I से निकलेगी, that comes out to be 31.25 ohm। so इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। now next question is question number 3, what are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of a series। देखिए हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं सबको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ना कि सीरीज़ में। क्यों? हर एक इक्विपमेंट की जो करंट रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है, बट अगर हमने उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बढ़ जाती है एंड द करंट जो है ओवरऑल सर्किट करंट रिड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो जितनी करंट की रिक्वायरमेंट है एक अप्लायंस की वो हमें नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिसलिए जितने भी रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट की वो उसको उतना करंट मिल पाता है अकॉर्डिंग टू इट्स रेटिंग। नाउ दूसरा, अगर सीरीज़ कनेक्शन में अगर हमने कनेक्ट किया और एक अप्लायंस अगर हमारा फेल हो गया तो पूरा सर्किट ओपन सर्किट हो जाता है। और पैरेलल में अगर एक अप्लायंस फेल हो गया, देखा होगा आपने अपने घर में कि अगर एक ट्यूबलाइट ख़राब होती है तो बाकी ट्यूबलाइट्स या बाकी अप्लायंसेस चलते रहते हैं। तो ये केवल पैरेलल कनेक्शन में पॉसिबल है, ना कि सीरीज़ कनेक्शन में। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू भी दूंगी। टिल देन आप इस क्वेश्चन का आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं एक्टिविटी के थ्रू इन द अपकमिंग मॉड्यूल्स आपको समझाऊंगी कि वाई सीरीज़ connection is not used for domestic circuit or why the parallel connection is used for domestic wiring। ठीक है, इसलिए तो हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। टिल देन आपको ये आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द 3 resistors of 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm to be connected to give the total resistance of 4 ohm and 1 ohm। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने एक NCERT का आपको करके दिखाया था। अब इसमें हमारे पास 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm रजिस्टर दी है। अब इसको कैसे कनेक्ट करें कि 4 ohm आए। अब इसके लिए अब देखेंगे कि अब हमें इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। देखिए अगर हम 3 ohm, 6 ohm को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है 2 ohm, और उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें 2 ohm के साथ तो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 4 ohm आ जाती है। तो ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए इन्होंने ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करा है। आप ऐसा ना यूज़ करके डायरेक्ट 1/R1 + R2 जो आपको बताया है उससे आप 1/RP भी निकाल सकते हैं। ये केवल 2 रेजिस्टेंसेज हैं तो इसलिए इसने डायरेक्ट इसको यूज़ कर दिया, बट आप इसी फार्मूले से इसको करेंगे। ठीक है, नाउ अब आपको 1 ohm चाहिए। 1 ohm में क्या है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है 1 ohm आनी चाहिए, यानी कि जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस है दैट इज़ 2 ohm, उससे भी कम आंसर चाहिए। तो इसका मतलब इसका तो डायरेक्ट आंसर आता है कि हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, और देखिए पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ किया एंड 1 ohm आ गई। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पहले भी बताया था ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ व्हाट Question number 5, what is the highest and lowest total resistance that can be secured by the combination of 4 coils of resistances 8 ohm, 4 ohm, 12 ohm और 24 ohm। देखो लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, और हाईएस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सीरीज़ में। तो हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी सीरीज़। ये सब कुछ आप आर सीरीज़ में कनेक्ट करके आर सीरीज़ इज़ R1 + R2 + R3 + R4, इससे जो भी आंसर आएगा दैट इज़ 48 ohm। दिस इज़ द मैक्सिमम एंड द लोएस्ट इक्विवेलेंट के लिए आपको RP निकालनी पड़ेगी। 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। ये फार्मूला ज़रूर लिख देना। इस आंसर की में अभी लिखे नहीं हुए, आप ये फार्मूलाज ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, नाउ वाई डज अ कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल हीटिंग एलिमेंट डज। देखिए बेटा, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं और 3 में भी पूछ लेते हैं, मैं दोनों का आंसर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
जैसे अगर 2 नंबर में लिखा है तो केवल इतनी एक्सप्लेनेशन से आपका काम चल जाएगा, और अगर 3 नंबर में है तो एक डायग्राम से भी एक्सप्लेनेशन है, तो आप अपनी कॉपी में पूरा ही आंसर लिखेंगे। ठीक है, मैं भी आपको समझा रही हूँ। द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ अ थिक कॉपर वायर। जो कॉर्ड की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक केबल की बात कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक हीटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए यूज़ होती है। सपोज़ ये हीटर है, हीटर के साथ आप एक वायर लगाते हैं जिसके साथ एक ये प्लग लगा होता है, तो इस कॉर्ड की बात कर रहे हैं, ये कॉपर की है। ठीक है, वाइल द एलिमेंट, जो इसके अंदर एलिमेंट लगा होता है हीटिंग के लिए, वो एक अलॉय से बना होता है। ठीक है, hence the resistance of a heater element is greater than the resistance of a copper। अब ये दोनों चीज़ें सीरीज़ में लगी हैं, और अब हमें पता है कि अलॉय की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो लार्ज। अब जब हीटिंग अफेक्ट का आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था I²RT, अब इसमें भी वही फार्मूला लगना है और इसमें भी वही फार्मूला लगना है। सेम करंट सेम टाइम के लिए अगर इन दोनों कॉपर वायर में से भी और हीटर में से भी जा रहा है, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि I² और T का फैक्टर तो दोनों में कॉमन हो गया। और सपोज इस हीटर की रेजिस्टेंस R है और दिस कॉपर वायर की स्मॉल r है, और जो r है वो मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल r है, तो I²RT जो है, दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट इन कॉर्ड एंड दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट इन एलिमेंट। तो अब I² कैपिटल RT इज़ ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन I²RT, इसलिए ये ग्लो करता है। तो इसको मैंने एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन 1 पेज नंबर 218 विद डायग्राम। तो आपको ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन विद दिस डायग्राम, यानी कि ये दोनों की दोनों चीज़ें जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है प्लस दिस, दोनों की दोनों चीज़ें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर दिखाया है, ये कॉर्ड है, इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी कैपिटल R है। कैपिटल R बहुत ज़्यादा है स्मॉल r से। सो फॉर द सेम करंट I एंड टाइम t, I²RT इज़ मच ग्रेटर देन I²RT। सो इसलिए हीटर जो है वो आपका ग्लो करता है और कॉर्ड ग्लो नहीं करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको ये वाला आंसर प्लस डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन जो नीचे दिखाई है, दोनों के दोनों आंसर लिखने हैं कंबाइन करके। नाउ कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transforming 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। यहाँ Q दिया हुआ है, टाइम दिया 1 आवर, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, V दे दिया 50 वोल्ट। अब हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज इक्वल टू Q इंटू V। तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 4.8 इंटू 10⁶ जूल्स आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक आयरन है, उसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में करंट ड्रॉ कर रहा है 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। तो R दिया है 20, I दिया है 50, T दिया है 30 सेकेंड। तो I²RT का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा 15 किलो जूल। या आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं साथ साथ। नाउ पेज नंबर 220, व्हाट डिटरमिन्स द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। बेटा ये रेट पूछ रहा है, जहाँ पे भी रेट पूछें तो वहाँ पावर आ जाती है, क्योंकि रेट का मतलब है डिवीजन बाय टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 220, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर from 220 volt line, determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours। so I हमें दिया है, V दिया है, टाइम दिया है, टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सारा कुछ ऐसा यूनिट में जाना है। तो पावर इज़ VI, हमने पहले पावर निकाली, एनर्जी कंज्यूम्ड आई पावर इनटू टाइम, इसको मल्टीप्लाई किया वो जूल्स में आ गई, और इसको फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द NCERT इंटेक्स क्वेश्चन। ये आपको नोट डाउन करने हैं, और इसके साथ मैंने आपको ये NCERT एक्सरसाइज के, ये केवल आपको सेल्फ ट्राई करने हैं। अभी नेक्स्ट मॉड्यूल में NCERT एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं लूँगी। जस्ट ये आपको दिए हैं, आपको ये कॉपी में नोट करने हैं। आंसर्स मैंने दे दी हैं, बट इसको सेल्फ करके देखना है पहले, ठीक है। तो अभी आप नोट करके रखिए, NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट मॉड्यूल में एक्सप्लेन होंगे। यू हैव टू क्रॉस चेक योर NCERT इंटेक्स क्वेश्चन गिवन इन द अर्लियर मॉड्यूल्स, जो मैंने आपको बताया।
वो आपको चेक करने हैं. नोट डाउन द न्यू क्वेश्चंस एक्सप्लेन इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर दिस इन NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. ये आपको केवल नोट करने हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं करे हैं, ये मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में करूँगी. आपको ये सेल्फ ट्राई करने हैं आज, और इनके आंसर्स मैंने दे दिए, आप इधर से देख के लिख भी सकते हैं, और इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे. थैंक यू.